चलो, the 13th question, this is what we are going to today complete it. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center. काफी now question को देख के कुछ नहीं समझता. What is the figure, what is the question and what it is asked. That is what. Now what is एक एक करते हैं. Opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. So ये quadrilateral सबसे पहले बोला है तो एक quadrilateral draw कर लेते हैं. So can you see there is a quadrilateral on the screen. So I'll name it as A, B, C and D. नाउ एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है यानी इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये एक सर्कल जो क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है. तो ये सब्सक्राइब कर तो ये यहाँ पे इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा P Q R S. सो यहाँ से टेंजेंट्स दिख रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट से C पॉइंट से D पॉइंट से. ओके ये चीज आप नोट देख सकते हो फिगर में. ओके फिर उन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल यानी लेट्स ज्वाइन दिस रेडियस. ओके अब यही रेडियस पे ऑन दिस रेडियस so what is the question asking, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing the subtend supplementary angles at the center of a circle. So जहाँ पे ये quadrilaterals फॉर्म हो रहे हैं, you just read out the question again and just check यहाँ पे हमें exactly क्या प्रूव करना है. So यहाँ पे एक सेंटर ऑफ सर्कल है. ओके अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे ए ओ ए ये जो एंगल है और ओ बी है ये हमें प्रूव करना इक्वल टू दिस एंगल एंड इक्वल टू दिस एंगल. यानी आपको यहाँ पे दिस यू हैव टू प्रूव इन द क्वेश्चन दैट यहाँ पे एक एंगल सबटेंड किया है. किसने सबटेंड किया है? रेडियस ने. द दिस पार्ट. सो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है, लेट्स गिव अ रेड मार्क टू हियर. व्हाट वी हैव टू प्रूव, लेट्स से so the opposite sides of the quadrilateral circumscribing the circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Yani you have to tell me whether this angle and this angle are supplementary angle. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में you have to prove that AOB plus COD is equal to 180 डिग्री. ये प्रूफ करना है. ओके और दूसरा ऐसे भी प्रूफ करना है आपको कि BOC plus AOD is equal to 180 डिग्री. सो इसके लिए लेट्स स्टार्ट द गिवन थिंग्स. ओके so please read the question, understand it. That's what we have to begin with. So we'll say let ABCD be the quadrilateral. So ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O. Okay now having P Q R and S as a point of contact सो ये इस फिगर में ABCD एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया जिसमें एक सर्कल है और उसके बाद इसमें वी हैव एग्जैक्टली टेकन पॉइंट PQRS एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच आर टचिंग द क्वाड्रिलैटरल. नाउ if I talk about the, let us see, consider triangle OAS and triangle, इसे नाम देते हैं, ऐसे लिख देते हैं. सो लेट अस से AOS and POS. Now the task is to prove these two triangles congruent. क्या टास्क है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. यानी ये इसके लिए
आप मुझे पहली चीज क्या बता सकते हो स्टूडेंट्स, एएस और एपी ये क्या है, इक्वल है, ये भी तो इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, और ओ ए कॉमन साइड है, यानी व्हाट आई विल राइट हियर, माय AS tangent shall be equal to AP tangent. Again, OA will be equal to OA and my OS is equal to OP. Reasons are quite simple. What is this? AS equal to AP, tangents from equal tangents from exterior point. You can say congruent tangents from point A. Similarly, OA common side. Next thing, why OS is equal to OP? OS or OP radii of circle. Now, so can I say triangle AOS shall be congruent to triangle POS with a reason? कौन सी reason के साथ ये congruent होगा? It will be by, यहाँ पे common side है, ये हमारी radius है, तो you can tell me S axiom या फिर से हमारे ये दो triangles क्या हो गए congruent. Now this triangles are congruent, so let us name the angles. इसे मैं one angle बोलता हूँ, चलो यहाँ पे angles के नाम देते हैं. दिस इज आई एम टेलिंग वन एंगल, इसे टू बोलता हूँ, इसे थ्री बोलता हूँ, इसे फोर, इसे फाइव और सिक्स और सेवन और एट. सो एज पर द फिगर लेट अस से लेट, ओके, विल नेम द एंगल्स. सो लेट एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू वन, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू टू, angle BOQ is equal to 3, angle COQ. So you please have a note down of this list appropriately in your books. So COQ आप ऐसे ही 4 लिखोगे, सारे नाम आप लोग कंप्लीट कर दोगे. ओके, नेमिंग एरिया. नाउ व्हाट इज दिस फिगर? आपके पास ट्राइंगल AOS और POS इक्वल आया है, इसके बीच में एक लाइन आप लिखोगे. व्हाट इज दैट लाइन? आई हैव टू राइट हियर. तो ये सिटी से मेरे पास कॉन्ग्रुएंट पेयर्स मिलने वाले हैं. See here the pointer located here, AOS and POA, ये क्या है? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, यानी 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे. क्या नाम दे इसे? सो आई विल टेल एंगल AOS shall be congruent to angle POS. Okay, CP CT. Therefore, I can say one angle shall be equal to 8. सो ये 1 इज इक्वल टू 8 तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो. ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं? आपका 1 एंड 2 इक्वल है, तो क्या फिगर में यही बातें अगले फिगर में यहीं पे समझ के लो कि 1 एंड 8 इक्वल है, तो ऐसे ही आपके पास कितने ट्राइंगल्स है इस फिगर में? चलो, तो ऐसे ही मेरे पास देखो, अगर ये AOP और AOS लेके 1 एंड 8 इक्वल आया, तो 2 एंड 3 भी इक्वल आ सकता है. यही कंसेप्ट है. ये वाले ट्राइंगल देखो, BQO एंड PBO इज अगेन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. वैसे 4 एंड 5 विल बी इक्वल, 6 एंड 7 विल बी इक्वल. तो मैं क्या चीज लिख सकता हूँ यहाँ पे? आई एम गोइंग टू राइट सिमिलरली we can get so many pairs. which one? 1 and 8 are equal. वैसे ये दो ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, 2 and 3 will be equal. So we can say 2 shall be equal to 3 and 4 and 5 भी इक्वल कर सकते हैं हम लोग. So 4 and 5 equal, or 6 and 7. So let us say 2 equal to 3, 4 is equal to 5, 5 is 6 is equal to 7 and 1 is equal to 8. ये सारे सिमिलरली से मिल चुके हैं. ओके, 1 is equal to 8 we have written already, so इसे नहीं लिखते हैं. चलो, सो यहाँ पे हमें क्या मिला? 1 equal to 2, 1 is equal to 8, 2 is equal to 3, 4 is equal to 5, 7 is equal to 6. Now, if I talk about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, if I add all these angles, ये सर्कल में ये जो एंगल है, ओके, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म होता है?
सो ये पूरा एंगल, कैन यू टेल मी ये क्या बनता है? So this sum of angle, this whole angle is always 360. So we can write one simple statement in the next part. Okay, so if I talk about angle 1, so if I talk about angle, so angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8, ये टोटल कितना होगा? 360 डिग्री. वाई? बिकॉज दे आर सम ऑफ ऑल एंगल्स, जो कि हमारा सेंट्रिक एंगल है, उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारा ये जो टोटल एंगल है 360 है. आपको पेयरिंग कैसे मिली? 1 and 8. सो आई जस्ट पेयर इट आउट. 1 प्लस एंगल 8, फिर हम लोग 2 प्लस 3 लिखते हैं, फिर हम लोग 5 प्लस 7 लिखते हैं. ओके, ये टोटल 360. सो 1 and 8 आर इक्वल. सो लेट इज राइट इट 1 प्लस एंगल. ओके, 8 को भी हम क्या लिखेंगे? सो व्हाट वी कैन राइट फॉर 8 आल्सो, उसके लिए भी सेम वही चीज लिख सकते हैं. सो आई विल राइट दिस बोथ एज 1. 2 के लिए वापस से इसको भी 2 लिख सकते हैं, और 5 के लिए इसे भी 5 लिख सकते हैं. यानी व्हाट यू गॉट हियर स्टूडेंट्स, दैट 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5, it's forming 360 degree. We have left one pair, so let's mention that pair. One second. It's an excited flow of question. You will enjoy to make the pairings. So 1 and 8, 2 and 3, 5 and 7, 4 and 5 we have left it. We will write that thing. So जैसे हमने देखो 1 and 8 को रीअरेंज किया, 2 and 4 को किया, तो वैसे 4 और 5 एंगल को अरेंज करते, और एंगल 6 और 7 को अरेंज करते. यस, ये रीअरेंजमेंट है का पार्ट है. सो अगर 1 and 8 ये प्रूव किया हुआ है, इक्वल है. ओके, 1 and 8 आर इक्वल, तो आई विल राइट देम एज एंगल 1 प्लस एंगल 1. 2 and 3 जरा देखो, 2 and 3 आर इक्वल, बोथ यू हैव टू राइट एंगल 2 प्लस 2. 4 and 5, सो 4 and 5 को दोनों को मैं 5 लिखता हूँ, एंगल 5 प्लस एंगल 5. 6 and 7, सो 6 and 7 दोनों को मैं लिखता हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 6. ये टोटल कितना हुआ? 360. नाउ दिस इज सेइंग 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6. कितना बन गया? 360. So if I dividing by 2, I'll get angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6. टोटल कितना होता है? 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2. So 1 plus 2, 5 plus 6, 180. Can I say 1 plus 2 is angle AOB in the figure? देखो ज़रा ठीक से. चलो, हमें इक्वेशन ऐसा मिला है, 1 plus 2 plus 5 plus 6 is 180, यानी AOB is 1 and 2 and COD is 5 and 6. So ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि AOB, सो 1 and 2 को हम लोग AOB बोल सकते हैं, प्लस 5 plus 6 यानी एंगल COD which is equal to 180 degree. यानी it's proved that the subtended supplementary angles are supplementary. यानी यहाँ पे similarly can you go for the same statement here itself again? So ऐसे ही पूरा पार्ट similarly अब इसी में वापस रीऑर्डर करके कैन यू गेट अ पेयर ऑफ, ऐसे पेयर लिख सकते हैं हम, विच वन? 3 plus 4 is equal to 8 plus 7 we can get. So ऐसे ही similarly 3 plus 4 plus 8 plus 7 shall be equal to 180 degree. Okay, so 3 and 4, what is the pair of 3 and 4? It is said to be COB. And what is my 8 and 7? 8 और 7 AOD बनेंगे. So ये भी सप्लीमेंट्री.
यानी हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल मतलब ए बी और डी सी, ये क्या कर रहे हैं, सेंटर पे जो एंगल्स बना रहे हैं, यानी ये जो एंगल बनाया था यहाँ पे मैंने मार्क किया है, देखो ये ए बी कॉर्ड एक ए ओ बी ट्राइंगल को सबटेंड करता है, और ये जो सी डी है ये यहाँ पे ये बना रहा है, तो ये जो साइड है और ये और साइड है, दिस इज फॉर्मिंग अ एंगल, and this AOB and COD are whether supplementary, what we have proved in the question, yes AOB and COD are supplementary। वैसे ये AD अपोजिट है BOC, इसके सामने भी तो ऐसा एक एंगल सबटेंड हुआ है दिस वे एंड दिस वे, so whether this is also proved supplementary, yes AOD plus COB is, so COB and AOD this is again 180, यानी इस क्वेश्चन में हमने जो प्रूव किया है, फिर से बता समझा देता हूँ कि जो अपोजिट साइड्स है वहाँ पे वो सबटेंड कर रहे हैं एंगल सप्लीमेंट्री, यानी ए ओ बी एंड सी ओ डी फॉर्म्स 180, अगेन ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी फॉर्म्स 180। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन, एंड सिमिलरली वी हैव एंडेड द चैप्टर 2। ओके, क्वेश्चन का फ्लो लंबा रहेगा, तो इतना ही समझना है कि व्हाट इज द फिगर। फिगर वाज व्हाट, क्वाड्रिलैटरल, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया जिसने पी क्यू आर एस ये 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे वो सर्कल क्वाड्रिलैटरल पे टच करता है। अब यहाँ से टेंजेंट्स इक्वल होंगे, तो विच ट्राइंगल वाज द फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, AOS and AOP, so this triangle and this triangle, both these triangles are the congruent triangles। so इससे प्रूफ क्या हुआ कि 1 and 8 angles are equal। तो दूसरी बात, आप वैसे भी सिमिलरली 2 and 3 यू कैन प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, 4 and 5 यू कैन प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, 6 and 7 इज कॉन्ग्रुएंट। सो व्हाट इज द वन थिंग मेजर लाइन, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 360 डिग्री है। सो I have replaced this 1 and 8 by 1, 2 and 3 by 2, 4 and 5 by 5, and 6 and 7 by 6। So यहाँ पे angle 1 plus 2 plus 5 plus 6 is 180। Then what I can say 1 and 2, if I say 1 and 2 means angle AOB, 5 and 6 is angle COD, this is again 180। So इसका मतलब the statement has been proved। So let's hence proved। Okay, we have done it। if you have doubts queries do ask me, also note it down quickly। everyone mark it as an LDR question, revise करना है इसे in the topic। so last day revision के लिए हमें ये लेस अच्छे से रखना है। the flow is easy, just go once revise at home। if you revise it surely आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि सर ने इतना जो फिगर ड्रॉ किया उसमें क्या चीज़ करनी है। सेकेंड स्क्रीन पे भी लिख के लो पार्ट 2 ऑफ द सम। चलो, we have done up with the lesson, practice it, go through with the revision once।